This is part 3 of the Indian polity. In this video, we will be covering the chapter 3 of the Lakshmikant, which is the salient features of the constitution. So let's begin with this chapter. And this is the smallest chapter, ठीक है, बट इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर. द सेलियंट फीचर्स मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या फीचर्स हैं, वो किस तरीके का है. ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं द फर्स्ट थिंग, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन द वर्ल्ड विच एवर कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का. इट वॉज ओरिजिनली 1949 में. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स and it is divided into 22 parts and 8 schedule. And you have now we have a much more than that. preamble है and articles have increased. 22 parts की जगह भी हमारे parts बढ़ चुके हैं and 8 schedule की जगह we have the 12 schedules. So it is the lengthiest constitution and it has been drawn from the various sources. means ऐसा नहीं है कि हमने खुद से इसको बनाया है constitution को. तो जब भी हम features की बात करेंगे then it is drawn from the various sources. like we have borrowed most of the provision from the constitution or the constitution of the other countries as well as from the government of India Act 1935. Then it is a blend of rigidity and the flexibility. means that it is a rigid constitution, means that to amend the constitution you require a special procedure for its amendment. like we in the American constitution में है, it is rigid. ठीक है, special provision. Also it is flexible because on the other hand it can be amended in the same manner as the ordinary laws are made. for example British constitution. so it is neither rigid nor flexible but a synthesis of both. means हमें से कुछ इसके provisions ऐसे हैं which are not easily amended, but some of the provisions are like they can be easily amended by the parliament or by the simple majority. okay, and the fourth feature is the federal system with the unitary bias. it means that we have the constitution of a federal system. it contains the federal system but it with a unitary bias, means it is biased towards the center. see, article 1 says that it defines the union of states and not the federation of states. means we have the, this is India suppose, ठीक है. so in India we have the states. ठीक है, इन सारी स्टेट्स को मिला के यूनियन, इन स्टेट्स का जो यूनियन है इट बिकम्स इंडिया एंड नॉट दी फेडरेशन. मीन्स जैसे यूएसए में फेडरेशन है कि हर एक स्टेट की अपनी एक इंडिपेंडेंस है. ठीक है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में सारी स्टेट्स को मिला के एक यूनियन बनाया है एंड देन इट बिकम्स ए यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड इट इज़ द फेडरल सिस्टम वी हैव बिकॉज वी हैव द टू गवर्नमेंट. we have the central government as well as the state government and there is a division of power. and we have the written constitution describe the federal system because अगर आपका constitution written है then most of the provisions should be amended by the special majority which requires the majority and the acceptance by the states also. and it has a supremacy of the constitution, means जो constitution में लिखा है वही माना जाएगा, not what the center says. and rigidity of the constitution, that means some of the constitution provisions require a special procedure. and we have independence of the judiciary, means judiciary is independent of the law, judiciary is independence of the executive. and we have the bicameralism is Lok Sabha as well as the Rajya Sabha is the representation of the states. so these are some provisions which shows that India is a federal country. but India is unitary as well. how it is unitary? because there are a strong center, because in most of the cases when you see the parliament law and state law is same, but the parliament law will be prevail there. ठीक है, parliament law माना जाएगा अगर दोनों ही law same है और parliament में कुछ changes हैं तो parliament का जो कानून है वो इंडिया में और उस state में माना जाएगा. एंड वी हैव द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स पूरे इंडिया का एंड सारी स्टेट्स का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये भी एक यूनिटरी फीचर दिखाता है. एंड वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप. जैसे यूएसए में यू हैव द ड्यूअल सिटीजनशिप, मीन्स यू आर द सिटीजन ऑफ यूएसए एज वेल एज यू आर द सिटीजन ऑफ द स्टेट एज वेल. बट इन द इंडिया यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ स्टेट.
and we have the flexibility of constitution, means constitution can be amended by the parliament only, so it shows the unitary bias. And we have the integrated judiciary. Integrated judiciary means you have a supreme court here, then you have the high court, then you have the subordinate court. When supreme court is supreme here, and subordinate courts are subordinate to upper courts. Okay, so it shows the unitary feature. Then appointment of state governor. अब state का governor है, center appoint कर रहा है, then it also shows the unitary feature. And we have all India services like IAS, IPS. These are the Indian administrative service. And we have the emergency provisions जहाँ पे parliament नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, वेयर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है किसी भी स्टेट के अंदर. ओके, सो दीज फीचर्स शो द unitary feature of the constitution. Then you will see the parliamentary form of government is the another feature of our constitution, that हमारा जो constitution है वो parliamentary form of government को follow करता है. See, we have the two type of the government. One is the parliamentary form and one is the presidential. In presidential you will see the USA, ठीक है, France which is semi presidential, and parliamentary जो कि यूके और इंडिया में आपको देखने को मिलती है, where you will see the Lok Sabha and the Rajya Sabha with the PM as a head of the union cabinet, and you will see the president which is bound by the aid and advice of the councils of ministers. ठीक है, in the presidential system you do not find any PM. ठीक है, यहाँ पे PM नहीं होता. So we follow the parliamentary system. ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग वेस्टमिंस्टर भी बोलते हैं इसको. दिस इज द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट दिखाता है. मीन्स कैबिनेट मीन्स यू हैव ये PM है, देन यू हैव द कैबिनेट्स. ठीक है, कुछ कैबिनेट होंगे जो डिसीजन लेंगे. ये पूरा लोकसभा है, लोकसभा में यू विल बी हैविंग ऑल द मेंबर्स, बट यू हैव एंड यू हैव अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेयर, एंड विद इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर देयर आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन recognized by the PM. They will be calling as a cabinet system. ठीक है, तो cabinet government होती है. Even though Indian parliamentary system is large based on the British pattern, there are some fundamental difference between the two. For example, इंडिया की जो parliament है, it is not a sovereign body. ठीक है, जैसे ये हमारा जो parliamentary system है, sovereign body का मतलब होता है कि वो decision खुद से ले सकते हैं, किसी चीज़ पर dependent नहीं है. ठीक है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है. सॉवरन क्यों नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेयर एज ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं है. एंड फर्दर जो इंडिया का जो स्टेट है, मतलब इंडियन स्टेट में वी हैव अ इलेक्टेड हेड विच वी कॉल्ड रिपब्लिक, बट इन ब्रिटिश स्टेट दे डू नॉट हैव अ इलेक्टेड हेड, दे हैव द हेरिडेटरी हेड विच इज़ मोनार्क. लाइक इन इंडिया वी हैव PM एंड प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं. तो जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं दैट इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. ठीक है, दैट यू आर इलेक्टिंग योर हेड ऑफ द स्टेट. बट वेयर एज इन UK और द ब्रिटिश पार्लियामेंट यू विल बी सीइंग अ PM प्लस प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड, इट इज़ अ हेरिडेटरी. मीन्स जो चलता आ रहा है मोनार्की सिस्टम, लाइक दिस इज द किंग. इफ अगर ये किंग मर जाता है तो उनका जो बेटा होगा देन इट विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट और द नेक्स्ट किंग और द क्वीन. ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम चलता है वहाँ. एंड द सिक्स्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट हैज़ अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एज वेल एज द जुडिशियल सुप्रीमेसी. मीन्स पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी जो है, पार्लियामेंट कानून बना रही है, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, जैसे कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की है. मीन्स जुडिशरी चेक करेगी क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वैलिड है या नहीं. अगर वो वैलिड है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है किसी भी कानून को. एंड वी हैव इंटीग्रेटेड एज वेल एज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंटीग्रेटेड सिस्टम मीन्स वी हैव अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट लाइक सेंटर और एज वेल एज स्टेट लॉज, अनलाइक इन USA वेयर द फेडरल लॉज है, जहाँ पे कि वहाँ का जो फेडरल कोर्ट है वो सिर्फ फेडरल इश्यूज़ को देखेगा. ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड है. SC जो है वो सेंटर एज वेल एज स्टेट के लॉज को देख सकता है. ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट मीन्स दैट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, दैट अपॉइंटमेंट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, एंड इफ दे हैव टू बी रिमूव्ड देन देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर. ठीक है, और उनकी जो सैलरीज है और जो भी अलाउंसेज है इट शुड बी चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया.
ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स. एंड देन यू विल सी द सिंगल सिटीजनशिप. एज आई सेड अर्लियर, इट इज अ यूनिटरी फीचर, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप. देन सिंगल सिटीजनशिप मीन्स दैट दो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बट ड्यूअल पॉलिटी भी है हमारे पास, एंड इट प्रोवाइड ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, मीन्स यू आर द इंडियन सिटीजन, नॉट अ स्टेट सिटीजनशिप. ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमने कहाँ से क्या लिया है. सो रिमेंबर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से वी हैव बोरोड द फेडरल स्कीम. ठीक है, फेडरल स्कीम मीन्स सेंटर एंड स्टेट, एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि आप हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा, ये दैट वी हैव. द गवर्नर का होना इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और द recommendation from the center, it is not adopted from the government of India, but the office of governor has been adopted. Then judiciary system, public service commission, that is UPSC. ठीक है, emergency provisions and administrative details, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव बोरोड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कि किस तरीके का रूल ऑफ लॉ चलेगा, जो हम आर्टिकल 14 के अंदर देखते हैं. ठीक है, अंडर आर्टिकल 14 दैट वी हैव. देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, देन सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड द बाइकैमरलिज्म. ठीक है, ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से फॉलो किया है, कॉन्स्टिट्यूशन से. देन यूएसए से हमने क्या फॉलो किया, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मीन्स जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशियल रिव्यू, मीन्स जुडिशरी कैन रिव्यू द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, कि प्रेजिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं, एंड रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस विच इज सिमिलर टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट, एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट. सी the post of vice president has been taken from the US. ठीक है, देन यू विल सी द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश से हमने 3 चीज़ें ली हैं. पहला, वी हैव टेकन द DPSP, देन द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा. रिमेंबर दैट राज्यसभा में यू सी द 12 members दैट आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट. ठीक है, 12 members नॉमिनेटेड होंगे, प्रेजिडेंट नॉमिनेट करेगा, एंड रेस्ट आर इलेक्टेड. सो द नॉमिनेशन प्रोसेस इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश. एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट, की प्रेजिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इट वॉज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द आयरिश. देन कैनेडा, कैनेडा से वी हैव बोरोड द फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर. दैट हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है, इट इज़ फेडरेशन. ठीक है, फेडरेशन है वहाँ पे, कि स्टेट्स हैं बहुत सारी, बट सेंटर इज स्ट्रॉन्ग. ये हमने बोरो किया है कैनेडा से. एंड वेस्टिंग द रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, इट इज़ की मतलब जो पावर्स कुछ स्टेट के पास है, कुछ सेंटर के पास है, बट जो पावर्स बच गई, मीन्स रेजिड्यूरी पावर, वो सेंटर के पास रहेंगी. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, सी द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ बीन टेकन from the government of India Act 1935, but the appointment has been taken by the Canadian Constitution, from the Canadian Constitution. Then you will see the advisory jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, रिमेंबर करना कि एडवाइजरी जुडिक्शन जो है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट. ठीक है, इट इज़ बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव बोरोड द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, दैट वी हैव 3 लिस्ट. ठीक है, 7th शेड्यूल में वी हैव 3 लिस्ट. एक सेंटर की लिस्ट है जिसपे सेंटर कानून बना सकता है. देन यू विल सी द स्टेट लिस्ट, जिसपे स्टेट कानून बनाएगी. देन देयर इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे सेंटर एंड स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं. ठीक है, इट इज़ बोरोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया. देन यू विल सी द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, एंड द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. जॉइंट सिटिंग अंडर द आर्टिकल 108 की मीन्स जब हमें दोनों हाउसेज मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग करवानी पड़े, दैट इज बोरोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन वायमीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, मीन्स जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी. यू कैन रिमेंबर दिस फ्रॉम द हिटलर. ठीक है, सपोज हिटलर ने इमरजेंसी लगाई, अब कोई भी पर्सन अपना फंडामेंटल राइट लेके कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट. तो हिटलर को वो बात पसंद नहीं, तो हिटलर चाहता है कि जब भी मैं इमरजेंसी लगाऊं तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को मैं सस्पेंड कर सकूं. सो इट इज़ टेकन फ्रॉम द जर्मनी. ठीक है, बट दो द आइडिया वॉज नॉट सेम कि हमने इसी पर्पज से लिया है, बट यू कैन रिमेंबर जर्मनी एंड हिटलर. देन सोवियत यूनियन मीन्स USSR, जिसको हम रशिया बोलते हैं. तो वी हैव बोरोड रशिया से वी हैव बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, द आइडिया ऑफ जस्टिस. आइडिया ऑफ जस्टिस जो कि प्रियम्बल में है, जस्टिस का आइडिया कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है, देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव बोरोड द रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी. ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा
स्लोगन था. देन साउथ अफ्रीका से वी हैव बोरोड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स दैट कि हाउ वी विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वी हैव अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, एंड यू हैव 3 प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी इंक्लूड्स the 50% plus 2/3 of present and voting. Then you have special majority plus 50% ratification of state. मीन्स आपको स्टेट्स भी रेटिफाई करके दें, जिसमें से 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए. ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं दैट इंक्लूड्स दी फेडरल सब्जेक्ट्स, जिसमें स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है. ठीक है. देन इलेक्शन ऑफ मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा. सी इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो बचे हुए मेंबर्स हैं इलेक्ट हो रहे हैं राज्यसभा में, इट इज़ टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका. बट द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन द प्रोसीजर established by law. There are the two things. One is the procedure established by law and second is due process of law. मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने कोई भी कानून बनाया है, अगर वो लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है बाय वे ऑफ द रिट जुरिडिक्शन के थ्रू कि वो आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, देन सुप्रीम कोर्ट विल चेक लाइक ईदर द लॉ हैज़ बीन मेड थ्रू अ वेल प्रोसीजर. ठीक है, अगर वो प्रोसीजर ढंग से फॉलो किया है देन इट विल बी वैलिड. एंड इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ द सुप्रीम कोर्ट विल चेक द लीगैलिटी एज वेल एज द प्रोपोर्शनैलिटी कि क्या वो कानून सही है या नहीं है. इसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रोसीजर देखता है. एंड नाउ आफ्टर द केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ फॉलोड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज़ फॉलोड इन द USA. ठीक है, इसमें आपका मेनका गांधी केस है, आई गेस यस. ठीक है, जिसकी वजह से वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज़ इन द USA. बट इफ द क्वेश्चन आस्क्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इट इज़ बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, so this is all about the second chapter, and in the next video we will be covering the preamble of the constitution.